यही लेंगे दोनों एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को थोड़ा वोटर को हेल्प करना चाहिए, सबको देख। I would request the great social activists and ladies and gentlemen, हमारे 3 बहुत ही hard leaders के लिए जोरदार तालियां बजाएं. And in case anyone wants to say a few words, please take the mic from me, and I request you to, grace us with our token of appreciation. Mr. Activist, the President, Mr. Wasim Akhtar, Editor-in-Chief of Super News 24. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? I would also call upon Mr. Siraj Ahmed. Mr. Siraj Ahmed, if you are here, please come up on stage and আমি দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়া অন্য মিডিয়া তারা যেভাবে কভার করেছে অনেক কাজের মধ্যে বিষয়গুলো থাকে এবং এখন একটা সত্যিকারে বলছি একটা বলেছিল না যে আমরা বলি না একটা আইনের কথা বলি যে অনেক সময় স্পিক ইটসেলফ মানে কি প্রমাণ করে দেয় কি ঘটনাটাকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ঘটনায় কিন্তু প্রমাণ করে দেয় বিষয়টা কেমন একজন যদি ধরুন আমার এমএলএ হিসেবে অ্যাসেসমেন্ট হবে মমতা ব্যানার্জির কাছে রিপ্রেজেন্ট করবেন না করে যদি 5 বছরের যদি সোশ্যাল মিডিয়ার খবর কোনো দেখা যায় মানে কে অ্যাক্টিভ আর কে কীরকমভাবে কাজ করছে তার কিন্তু সার্ভে রিপোর্ট আজকের দিনে আজকের পৃথিবীতে গোপন করে সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত শুধু লোককে বলে যাবো জলের সময় হাঁটবো একটুখানি একটু খবর তুলে দিবে এই ডিসঅনেস্টি আছে মানে এখানে কিন্তু ফটোগ্রাফি বা ইত্যাদি বা ডকুমেন্টেশন এটা একটা এমনভাবে বিষয়গুলো করে যে লোকগুলো বলতে পারে আজকের এই কাউন্সিল অত্যন্ত পরিমাণে বিষয় হলো না আমি খুব ফর্চুনেট যে আমাকে দিয়ে আপনার ইলাবোরেট করেন আমি মনে করি আই মাইসেলফ পার্সেল অফ ইউর অর্গানাইজেশন হয়ে গেল আজকে থেকে আমি নিজে মনে করি এটার মধ্যে থেকে হয়ে গেল আমার সব রকম কোঅপারেশন থাকবে আমি শুধু একটা অনুরোধ করবো কাউন্সিলকে একটু দেখবেন মানে আগের বক্তা বলছিল সব বক্তব্য আমি শুনতে পারিনি দুর্দান্ত রোল পালন করে দিল বিভিন্ন দিকে প্রেস করে দিল এরা ঘটনা নানা কারণে ঘটে নানা কারণে ঘটে কিন্তু আমি একটা বলতে পারি যে আপনারা ছোটখাটো অনেক কাজ হচ্ছে মানুষেরা বিষয়গুলোকে করে এদেরকে প্রচারের আলোতে নিয়েছে এই খেলাধুলো বলুন ইত্যাদি বলুন বা তাদের মধ্যে বলুন সোশ্যাল কাজ বলুন এরকম কাজগুলো যেন নেগলেক্টেড না হয় এটা খুব দেখে নেবেন অনেকের ইনফ্লুয়েন্স থাকে না ঠিক মানে করতে এখন দেখুন আমি বলছি দেখুন সব স্ট্রিমেই কিন্তু মানে নানাভাবে দাঁড়াবাদ আমি নিজে জানি যে আমি একটা দুটো মিডিয়ার নাম বলবো না বললে বিতর্কে পড়ে যাবো তারা কভার করেন অবস্থা বুঝে নেতা বুঝে কভার করা বুঝে প্যাকেজ বুঝে কন্টেন্ট বুঝে তারা কভার করেন কন্টেন্টটা বুঝে কভার করেন আমার মানে কন্টেন্টটা বুঝে কভার করেন এটা করা যাবে এবং আমরা নিজেরা প্রচার করতে ধরুন আমি বিধায়ক আমি জানি না আর কোনো বিধায়ক করেন কিনা আমি যে মাইনেটা পাই সেই মাইনেটা আমি সমস্ত কিছু বন্টন করে দিই করি পারবো আমার একটা রমজান মাসে একটা বাচ্চা এবং 7 বছরের বাচ্চা তার হার্ট অপারেশন হবে আমি আমার মাইনের টাকা দিয়ে তার হার্ট অপারেশনটা করবো এটা শুনে একটা মানে যে নার্সিংহোমে গিয়ে 3 লক্ষ টাকার স্কিম 1 লক্ষ টাকায় করলে কোনো এমএলএ সাহেব দিচ্ছেন আমাদের আমি বলছি আর কিছুই না আমাকে হাইলাইট করার দরকার নেই কন্টেন্টটাকে হাইলাইট করুন এই কন্টেন্টটাকে হাইলাইট করার একটা সমস্যা আমাদের সামনে আছে এটা শুধু আমি সাংবাদিক বন্ধু বলছি আমাদের নেতাদেরও সমস্যা আছে আমরাও নানা কারণে সব কাজ বুঝে শুনে করি প্রচারের আলো মানে করি আসলে সবাই মিলে আমরা বলি যে সুন্দর ন্যাশনাল মিডিয়া কাউন্সিল
আজকে প্রফেসর হলো কাজে হোক যেভাবে আমাকে সহযোগিতা আমি নিশ্চয়ই প্রভাব করার জন্য সহযোগিতা করবো। আমরা যদি কোনো সমালোচনা থাকে তুলে ধরবো আমরা যদি আমি মনে করি সবসময় হচ্ছে যে আপনি যদি মানে ক্রিটিসিজম সবসময় কিন্তু এটা না, এটা থেকে আমার শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, এটা আমি মনে করি। আমি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত, জিতেছি কিন্তু হারিনি। হারা বলে না, হারা থেকে বলতে রবীন্দ্রনাথ বলেছে হারা থেকে শিক্ষা দিতে হবে। হারা হচ্ছে শিক্ষা এবং এডুকেশন। সেই জন্য আমরা আসুন সবাই মিলে সেই কাজটাকে করি। খুব ভালো লাগলো আপনাদের এই প্রোগ্রাম। আমি অত্যন্ত মানে খুবই ভালো লাগলো একটা কাউন্সিল আসতে পারে। আমি যদি আমাদের দুটো সংস্থা কাজ করতে আসবো কিন্তু আমার একটু অসুবিধা হয়ে গেল, কিন্তু মন পড়েছিল। আপনাদের সাথে সবাই বিভক্ত মানুষরা আছে, সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওঠে, সবাই নিশ্চয়ই বিভক্ত, সবাই সব স্ট্রিমে নিজের বিভক্ততা আছে। আমি সকলকে যারা নিউ টাউনের মানুষের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি যারা অর্গানাইজার তারা আমাকে অনার দেওয়ার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানি আমার বক্তব্য। Talking about the true essence of leadership, secularism, tolerism, tolerant. Sir, have a seat. Now everybody is seeing the momentum. That is the sign of the momentum. I would request, sir, to please come up another word, please, sir. Guide us with few words, sir. Thank you, sir. Namaskar. It is my honor to be here at the very inauguration of National Media Council. And I find many media friends are here, especially from the different portals. And of course, sprinkling of all our Calcutta's important personalities also here. So Saira was speaking before me and she spoke very well. I don't know if I can match up to that. But I think seriously that today, just to add to what she is saying, India is at war with itself. We are at war. हम लोग एक जंग के दरमियान हैं. On one side, we have people who are of a specific ideology. उनके सोच महदूद है और वो सब चीज़ सिर्फ अपने लिए चाहते हैं. On the other side is the rest of India, including us, including every Hindu, Muslim, Sikh, Isai, who believes in the foundation of our constitution, who believe that India is secular. So these two sides is warring, and for a long time it is going on, but now it is becoming more and more obvious कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी इससे आप बच नहीं सकेगा, ये बचते पारवे नहीं, and we have to choose sides. So our side is chosen. We want to grow up, or we want our children to grow up in the India we grew up in. We don't want this fangled, this नया भारत जो बोल रहे हैं, ये चीज़ जिसमें सिर्फ एक ही आदमी एक ही तरफ को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, वो नहीं चाहिए. हम लोग को ऐसा चाहिए भारत जिसमें सब लोग रह सके, सब लोग को बराबर का हक मिले, जैसे हमारे संविधान, जैसे हमारे दस्तूर, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है. सबसे ज़्यादा इसमें जो रोल होता है वो होता है, सबसे पहले जिस पर अटैक होता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच. और आप अपनी बात बोल ही नहीं सके, इसी की हमेशा कोशिश रहती है. ये नैरेटिव को ऐसे ले जाएंगे कि इन्हीं का नैरेटिव पर बात हो. तो हम लोग को जो देखना है, we have to see that we don't fall into that trap. We are not going to answer the narrative. They will want to keep the narrative in such a way that the society remains polarized and the pot keeps boiling with benefits. We have to move away from that. We have to push our own narrative, that is that India is secular and in which everybody is welcome and everybody is an equal and equally contributing citizen. मीडिया की जिम्मेदारी इसमें बहुत हो जाती है, और जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके आज के दिन में गोदी मीडिया हो गया, किसी की गोद में जाके बैठ गया. और मैं जर्नलिस्टों को ब्लेम नहीं करता, क्यों करके वो लोग भी मजबूर हैं कि वो मालिक है, और वो मालिक भी दरअसल वो मजबूर है क्योंकि अगर वो नहीं करें तो वो सर्वाइव नहीं करता है. तो ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी सरकार जो हमारे इन अक़दार को प्रोटेक्ट करे, जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वैसी सरकार या वैसे
फिलॉसफी वैसे आइडियोलॉजी को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है जो जर्नलिस्ट आज के हैं और खास करके जो पोर्टल वाले हैं कि हम लोग एक भीड़ बना करके वहाँ पहुँच जाते हैं किसी भी जगह और इशू में खो जाते हैं। तो इशू में खोने से नहीं होगा, आपको उसमें से निचोड़ निकालना होगा। आप खाली टीआरपी और खाली हिट्स देखिएगा तो नहीं चलेगा, सच्चाई को सामने लेकर आना। और यहाँ पर भी एथिक्स का आता है, जर्नलिस्टिक एथिक्स की बात। तो दो चीज़ को आपको समझना चाहिए यहाँ पर। एक कि इफ somebody says no comments, it means no comments। आप फिर भी हम देखते हैं कि कोई बोला नो कमेंट, हाँ आप तो नो कमेंट बोले लेकिन इसके माने क्या है? अब इसमें तो कोई ये नहीं। तो इसमें जो जर्नलिस्ट है या जो लड़का जो पूछ रहा है या लड़की जो पूछ रही है उसको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ है। आपको खुद समझना होगा कि इसके माने क्या है। और दूसरा ये है कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आप उसी को उल्टा दिखा रहे हैं। उसने कह दिया ऑफ द रिकॉर्ड तो आप फिर बोले हाँ ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने ये कहा और फिर ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए भी ये कहा। तो फिर वो बोलने की जरूरत क्या हुई ऑफ द रिकॉर्ड? ऑफ द रिकॉर्ड माने और आप जो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, ये कमेंट्स हम नहीं चाहते कि मेरा पब्लिश हो। तो ये दोनों चीज़ को आपको अपने एथिक्स में लेकर के आना होगा। जो भी भाई हैं, जो भी बहन हैं, जो भी बच्चे हमारे कर रहे हैं, इसको आपको, क्योंकि हम लोग को फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। और आज के दिन में जो पोर्टल मीडिया का जो मशरूमिंग हुआ है, सब आदमी, मैं समझ रहा हूँ कि एक ज़रूरत है और एक जो क्या बोलिए एक अच्छा इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये जरिया भी है। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग जो ये नेशनल मीडिया काउंसिल के जो ओहदेदारान हैं या जो उनको चला रहे हैं, वो आप ये एक वर्कशॉप वगैरह किए जहाँ पर जर्नलिस्टिक एथिक्स जो ये लड़के लोग हैं ये सब इनको आप लोग सिखाइए ताकि ये लोग आगे जाकर करके और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर सकें। कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और एक शेर में जो हर जगह पढ़ता हूँ, आप लोग के लिए भी पढ़ता हूँ कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा और अंधेरे को बुरा कहने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया को जलाना। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप वापस स्टेज पे आ जाए। बहुत मेहनत करा रहे हैं हम आपसे। जस्ट टू फाइट फॉर इक्वालिटी एंड फ्री प्रेस वी वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नदीम will have to please come up on stage, and with that I would request the members, our chairman of the National Media Council Mr. Parvez Hashim, to please come up on stage. Nadeem sir, I would request you to please felicitate our chairman. I would call upon the vice chairman, Sheikh Muhajir Rahman, who is the editor-in-chief of Desh Ki Awaaz. The vice chairman, Mr. Mustafiz Hashmi, who is a social activist. The president, Mr. Wasim Akhtar, editor-in-chief of Super News 24. The President, Treasurer Sarfaraz Ahmed, and Convener Shubham Tiwari, to please come up on stage, and I request Tapar sir to please felicitate all our members. I request the President, Mr. Wasim Akhtar, Editor-in-Chief of Super News 24, to be felicitated by Tapas ji. Tapas ka amar bangla khub baje. I'm very sorry. Please forgive me. I'm not, yes. Definitely. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाएं।
जोरदार तालियां हो जाए। Thank you so much, Tapash sir. Khub dhanyawad, and we are honored by your presence. Thank you so much, sir. So we would now take a short picture, and I request the audience to please have a huge round of applause for the future of journalism. Very right-minded people who have come together to form a beautiful association, the National Media Council. Thank you so much. Thank you, Nadeem sir. Sophia. नमस्कार। सबसे पहले तो नेशनल मीडिया काउंसिल और उसकी पूरी टीम ने जो अदारा बनाया है उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू तहे दिल से मुझे यहाँ पर शामिल किया अपनी खुशी में। इस अदारे के बारे में अगर हम कहें तो बहुत कम होगा, क्योंकि अपने आप में ये बहुत अनोखी बात है कि मीडिया को लेकर हम देखते हैं कि बहुत से ट्रस्ट हैं, बहुत से NGOs हैं, बहुत से सोसाइटी के नाम पर बहुत सारे अदारे बने हैं, लेकिन ये जो अनोखा चीज़ हम देख पा रहे हैं, अनोखी चीज़ जो हम देख पा रहे हैं, ये बहुत अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, जहाँ पर जितने भी मीडियाज़ है, स्पेशली जो सोशल मीडिया की जो ताकत है वो अपने आप में आकर जुड़ गई है। और आई एम श्योर कि आगे भी और भी बहुत से अदारे इसमें आकर जुड़ेंगे। बहुत सी मीडिया जो है, जो खासकर यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ, अगर हम कहते हैं ना एक अकेला है, लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए, साथ आ जाए तो मुट्ठी बन जाता है। तो ऐसे में ये अदारे को मैं फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी कि अभी के दौर पर Ladies and gentlemen, Mr. Shah Alam. Up next, I would call upon a very, very dynamic personality again, Mr. Mohammad Rafiq Siddiqui. Please, sir, come up on stage. I've known him for years, and sir is... आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो प्लेटफॉर्म है निश्चित तौर पर हमारा जो प्रोफेशन है उससे जुड़ा हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि नेशनल मीडिया काउंसिल आज इनॉग्रेशन है और उसका मैं हिस्सा बना हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया है सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड की बात करते हैं। मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ था, कई पॉलिटिशियन आए, वो पॉलिटिक्स की बात करके चले गए। जाहिर तौर पर हर किसी की तलाश होती है कि मौका मिले कि मौका लगाओ, है। किसी ने गोदी मीडिया नाम दे दिया, किसी ने कुछ और नाम दे दिया, किसी ने और कुछ नाम दे दिया। मेरा मीडिया फील्ड में मैं 2 मिनट आप लोगों का तवज्जो लगाऊँ चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट। बोलने की आदत तो दिन भर बोलता ही रहता हूँ, लोग देखते भी रहते हैं, कभी कभी बोलने से भी बोल हो जाते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे। लेकिन 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट मंच है और 2 मिनट आप सबका मैं जानना चाहूँगा। मैं इस फील्ड में 14 साल से हूँ, अल्लाह का शुक्र है 14 साल से। 10 साल से तो ताकत ही हुई। मैंने उस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी जब ये सोशल मीडिया था नहीं। एंड्रॉइड फोन भी बहुत सारे गिने चुने लोगों के मोबाइल फोन था, बल्कि बहुत लोगों के पास था भी, इवन हम लोगों के पास भी। मैंने उस दौर की पत्रकारिता को भी देखा है, बल्कि किया है, मैं गवाह हूँ और आज की पत्रकारिता को भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हम मीडिया वाले, मैं मीडिया की बात करूँगा, जब हम मीडिया वाले आपस में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई गोदी मीडिया है, जब कोई वो कहता है कि तुम चाटुकार मीडिया हो, जब कोई कहता है कि आप इसको मक्खन लगा रहे हो, कोई कहता है कि देखो तुम इसके पीछे वसूली करने के लिए लगे हो, तरह तरह की बातें होती है, तो मुझे अफसोस होता है। मेंटालिटी निश्चित तौर पर देखिए चैलेंज है। हम लोगों ने सुना था, पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इमरजेंसी के दौर को जब मीडिया के ऊपर एक बैन लगा दिया गया था, उस दौर में भी मीडिया ने लड़ाई लड़ी। और मुझे याद है कि उस दौर में भी प्रिंट मीडिया ने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल किया था, जब प्रेस लिखी हुई गाड़ी को पुलिस वाले पकड़ लेते थे। लड़ाई उस वक्त भी लड़ी गई थी, लड़ाई उस वक्त भी लड़ी गई जब मीडिया को टारगेट करके उनके हाउस के अंदर CBI, ED रेड किया गया,
जब उनको टारगेट किया गया, उनको ब्लैक किया गया, तब भी लड़ाई लड़ी गई और आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम मीडिया वालों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम लोगों के साथ बैठते भी हैं, हम मीडिया वालों का तवज्जो चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो आपस में क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। सबसे पहले क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए आपस में। ये तय कर लीजिए कि मीडिया का मतलब ही माध्यम है, और माध्यम किसका? माध्यम सरकार और जनता का माध्यम है। सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बातों से सरकार को अवगत कराना, यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी मीडिया दिया गया, माध्यम दिया गया। अगर इससे बाहर हम कुछ जाते हैं, अगर ये और जो सच दिखा रहे हैं ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं उनका प्रोटेक्शन हो सके। जी सर, एक छोटा सा सर जी, कल की मीडिया, कल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज की ये जो सोशल डिजिटल मीडिया जी, इसमें क्या फ़र्क है सर? क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप कल की मीडिया को आप कह रहे हैं तो जिस कल के बारे में आप कह रहे हैं, यानी जो कल आज से हम लोगों ने यानी 5-10 साल पहले देखा था इंडिया में, उस वक्त तक तो मीडिया का मामला बिल्कुल न्यूट्रल था और सच दिखाया जाता था चैनलों से। मगर अब जो है कई सालों से जो ये गोदी मीडिया का जो एक ट्रेंड चला है, मैंने बचपन में एक प्रोवर्ब पढ़ा था इंग्लिश में कि इफ़ यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, बट इफ़ यू डू रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। तो वो अब मैं प्रैक्टिकली होता हुआ देख रहा हूँ अपने देश में। यानी जो सच है, जो सच्ची खबरें हैं वो दिखाई नहीं जाती, और कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही हम मुलजिम को मुजरिम ठहरा देते हैं, और सारे फ़ैसले जो हैं मीडिया में ही कर लिए जाते हैं। हम ही तय कर लेते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ऐसे वक्त में एक ऐसे एसोसिएशन, ऐसे काउंसिल की बुनियाद पड़ना ज़रूरी थी कि जो सच्चे मीडिया वालों को और सच्चे पत्रकारों को लेकर एक एसोसिएशन बने, ताकि उनके लाइफ के ऊपर भी जो थ्रेट है उनके प्रोटेक्शन का इंतज़ाम हो, और साथ में पब्लिक को, आवाम को सच्ची न्यूज़ और सच्ची खबरें दिखाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल मीडिया काउंसिल में। मेरा बस एक ही सवाल है, छोटा सा सवाल है। आज के दौर में ये जो नेशनल मीडिया काउंसिल का जो फाउंडिंग हुआ, तो इसमें आपको आकर कैसा लगा? बहुत सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, नेशनल मीडिया काउंसिल का आज इनॉग्रेशन है। ये एक बहुत अच्छी सोच है कि यूनाइटेडली एक मिलजुल के एक मीडिया, नेशनल मीडिया काउंसिल जो फॉर्म हुई है। आप पोर्टल टीवी जो आजकल हम लोग सबके हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके थ्रू आज आप लोग सबको को एक न्यूज़ सही तरीके से ट्रू जर्नलिज्म के थ्रू आप लोग जो पहुंचाते हैं, इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म में आप लोग लेके आए हैं। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है। जो लोग आज टीवी के ज़रिए, जो गोदी मीडिया के ज़रिए, जो कहीं ना कहीं एक ट्रू जर्नलिज्म से बहुत दूर हो गए हैं, आप उनको करीब लेके आ रहे हैं उस जर्नलिज्म के, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बचाव है, जिससे हमारी सेकुलरिज्म की एक बचाव है। जो आज हमारा ऐसा दौर चल रहा है हिंदुस्तान में कि लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं, लोग की सोच बहुत पीछे होती जा रही है, लोग को सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म किया है, ये एक बढ़ोतरी है समाज को सही जगह दिखाने की, समाज को सही न्यूज़ पहुंचाने की, समाज को एक बेहतर इंडिया बनाने की। तो ये आप लोग की सोच को मैं सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, और दुआ करती हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए, ये नेशनल मीडिया काउंसिल बहुत तरक्की हासिल करे, और बस दुआ के साथ मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अल्लाह। मीडिया का मतलब है कि एक भाया होकर सरकार को पब्लिक की बात सुनाना, और इसमें मीडिया की यही भूमिका रहता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मैं देखा कि कुछ पॉलिटिशियन भी बात हुई है, जिससे हम खंडन भी करते हैं कि लोग इस तरह से मीडिया को समझ रहे हैं कि एक सरकार का, जिसको बोलते हैं चमचागिरी वाला बात, जो रनिंग पार्टी है उसकी तारीफ करना, उसका होकर काम करना, ये मीडिया काम नहीं है। मीडिया काम है जो रियल होता है, जो आईना है उसी को दिखाना। आईना के सामने अगर हम खड़ा होते हैं तो खुद को देखते हैं। तो मीडिया का यही काम है कि पब्लिक को बात सुनकर खुद को सरकार तक पहुंचाना।
जब ये प्रिंट मीडिया था, जब देश में मुल्क में आज़ादी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो प्रिंट मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया। गांधी ने जब ये लड़ाई को छेड़ी तो 1753 में जो जंग ये छोड़ा गया कि देश को आज़ाद कराना अंग्रेज़ों से, तो प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा काम था। उसने बहुत बड़ा काम किया, लोगों तक पहुंचाया कि हमें लड़कर अपने हक लेना है तो किस तरह लेना है। तो यही मीडिया का काम है। उस वक्त प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा काम था। आज तो मीडिया बहुत तरक्की किया है, तो कम से कम मीडिया को, पब्लिक को बात पहुंचाना चाहिए सरकार तक। नीचे तबका का आदमी, बहुत सा गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, हॉकर्स, फुटपाथ पर रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, उनका बात पहुंचाना चाहिए। अभी सभी सरकार जब इलेक्शन आती है तो सभी नेता बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मेरी बहन ने बताई कि ममता जी को हाथ बढ़ाना चाहिए, ममता जी को हाथ मजबूत करना चाहिए। तो ममता जी जब सरकार में आई थी तो बोली थी कि उर्दू लैंग्वेज को सेकंड कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ हमको ये नहीं समझ में आया कि बहन कैसे बोली ये बात को। दूसरा बात बोली कि बहुत से लोग बेकार हैं, तो उसको सरकार को कहाँ ध्यान है इस बात पर। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इस नेशनल मीडिया के थ्रू ये काम कर रहे हैं, इस बात को पहुँचाइए। और बहुत सा पढ़ा लिखा लड़का लड़की हमारे पश्चिम बंगाल के दूसरे राज्य में आए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ तरक्की होना चाहिए, ताकि लोगों जो यहाँ से बच्चे लोग लिख पढ़ कर जा रहे हैं यहीं नौकरी पाए, यहीं काम करें। लेकिन ये नहीं हो रहा, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, इस नेशनल मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे और आप लोग को मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि इसको आप लोग बात को पहुँचाएंगे। उनके जद्दोजहद से नहीं मिला है। आप लोग बहुत कोशिश के बाद आज आप लोग का पैदाइश हुई है। इससे पहले आप लोग बहुत लड़ाई लड़े, बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सा थ्रेट को लाया आप लोगों के पास, मुझे इसकी खबर है। लेकिन आप लोग हार नहीं माने। आज जो ये टीवी मीडिया है जो 99% बिकी हुई है, अगर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता तो ये जो गरीब जनता है, जो भी लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, रहने वाले हैं, किसी भी जात धर्म से हो, उसकी खबर सरकार को नहीं मिल पाती, या सरकार की जो खबर होती है वो हम लोग के पास नहीं मिलती, क्योंकि जो टीवी मीडिया है ज़्यादातर बिकी हुई है, वो रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम लोग के पास सही रिपोर्टिंग, सही खबर, सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग आज सलामत है। आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ईमानदारी और हक से आप लोग काम करते रहे, यही मेरी अल्लाह से आरज़ू है। शुक्रिया। The President, Mr. Wasim Akhtar, Editor-in-Chief of Super News 24, with our token of appreciation. So great social activist and ladies and gentlemen, हमारे 3 बहुत ही hard leaders के लिए जोरदार तालियां बजाएं. And in case anyone wants to say a few words, please take the mic from me and I request you to, grace us. I would request. दोनों एक तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट को थोड़ा वोटर को हेल्प करना चाहिए, सबको देख। Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause? I would also call upon Mr. Siraj Ahmed. Mr. Siraj Ahmed, if you are here, please come up on stage and upon Sufia Khan to join the bandwagon and be a part of this felicitation. So, Miss Sufia Khan, please come up on stage. मीडिया का मतलब है कि एक भाया होकर सरकार को पब्लिक की बात सुनाना, और इसमें मीडिया की यही भूमिका रहता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मैं देखा कि कुछ पॉलिटिशियन भी बात हुई है, जिससे हम खंडन भी करते हैं कि लोग इस तरह से मीडिया को समझ रहे हैं कि एक सरकार का, जिसको बोलते हैं चमचागिरी वाला बात, जो रनिंग पार्टी है उसकी तारीफ करना, उसका होकर काम करना, ये मीडिया काम नहीं है। मीडिया काम है जो रियल होता है, जो आईना है उसी को दिखाना। आईना के सामने अगर हम खड़ा होते हैं तो खुद को देखते हैं। तो मीडिया का यही काम है कि पब्लिक को बात सुनकर खुद को सरकार तक पहुंचाना। जब ये प्रिंट मीडिया था, जब देश में मुल्क में आज़ादी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो प्रिंट मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया। गांधी ने जब ये लड़ाई को छेड़ी
तो 1753 में जो जंग ये छोड़ा गया कि देश को आज़ाद कराना अंग्रेज़ों से, तो प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा काम था। उसने बहुत बड़ा काम किया, लोगों तक पहुंचाया कि हमें लड़कर अपने हक लेना है तो किस तरह लेना है। तो यही मीडिया का काम है। उस वक्त प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा काम था। आज तो मीडिया बहुत तरक्की किया है, तो कम से कम मीडिया को, पब्लिक को बात पहुँचाना चाहिए सरकार तक। नीचे तबका का आदमी, बहुत सा गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, ठेला वाला, रिक्शा वाला, हॉकर्स, फुटपाथ पर रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, उनका बात पहुंचाना चाहिए। अभी सभी सरकार जब इलेक्शन आती है तो सभी नेता बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी मेरी बहन ने बताई कि ममता जी को हाथ बढ़ाना चाहिए, ममता जी को हाथ मजबूत करना चाहिए। तो ममता जी जब सरकार में आई थी तो बोली थी कि उर्दू लैंग्वेज को सेकंड कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। कुछ हमको ये नहीं समझ में आया कि बहन कैसे बोली ये बात को। दूसरा बात बोली कि बहुत से लोग बेकार हैं, तो उसको सरकार को कहाँ ध्यान है इस बात पर। मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इस नेशनल मीडिया के थ्रू ये काम कर रहे हैं, इस बात को पहुँचाइए। और बहुत सा पढ़ा लिखा लड़का लड़की हमारे पश्चिम बंगाल का दूसरे राज्य में आए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, यहाँ तरक्की होना चाहिए, ताकि लोगों जो यहाँ से बच्चे लोग लिख पढ़ कर जा रहे हैं यहीं नौकरी पाए, यहीं काम करें। लेकिन ये नहीं हो रहा, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, इस नेशनल मीडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे और आप लोगों को मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि इसको आप लोग बात को पहुँचाएंगे। दिन के जद्दोजहद से नहीं मिला है। आप लोग बहुत कोशिश के बाद आज आप लोग का पैदाइश हुई है। इससे पहले आप लोग बहुत लड़ाई लड़े, बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सा थ्रेट को लाया आप लोगों के पास, मुझे इसकी खबर है। लेकिन आप लोग हार नहीं माने। आज जो ये टीवी मीडिया है जो 99% बिकी हुई है। अगर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता तो ये जो गरीब जनता है, जो भी लोग हैं, हम लोग हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं, रहने वाले हैं, किसी भी जात धर्म से हो, उसकी खबर सरकार को नहीं मिल पाती, या सरकार की जो खबर होती है वो हम लोग के पास नहीं मिलती, क्योंकि जो टीवी मीडिया है ज़्यादातर बिकी हुई है, वो रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम लोग के पास सही रिपोर्टिंग, सही खबर, सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग आज सलामत है। आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ईमानदारी और हक से आप लोग काम करते रहे, यही मेरी अल्लाह से आरज़ू है। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल मीडिया काउंसिल में। मेरा बस एक ही सवाल है, छोटा सा सवाल है। आज के दौर में ये जो नेशनल मीडिया काउंसिल का जो फाउंडिंग हुआ, तो इसमें आपको आकर कैसा लगा? बहुत सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। नेशनल मीडिया काउंसिल का आज इनाग्रेशन है। ये एक बहुत अच्छी सोच है कि यूनाइटेडली एक मिलजुल के एक मीडिया, नेशनल मीडिया काउंसिल जो फॉर्म हुई है। आप पोर्टल टीवी जो आजकल हम लोग सबके हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है, जिसके थ्रू आज आप लोग सबको को एक न्यूज़ सही तरीके से ट्रू जर्नलिज्म के थ्रू आप लोग जो पहुंचाते हैं, इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म में आप लोग लेके आए हैं। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा है। जो लोग आज टीवी के ज़रिए, जो गोदी मीडिया के ज़रिए, जो कहीं ना कहीं एक ट्रू जर्नलिज्म से बहुत दूर हो गए हैं, आप उनको करीब लेके आ रहे हैं उस जर्नलिज्म के, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बचाव है, जिससे हमारी सेकुलरिज्म की एक बचाव है। जो आज हमारा ऐसा दौर चल रहा है हिंदुस्तान में कि लोग बहुत पीछे चले जा रहे हैं, लोग की सोच बहुत पीछे होती जा रही है, लोग को सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो जिस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म किया है, ये एक बढ़ोतरी है समाज को सही जगह दिखाने की, समाज को सही न्यूज़ पहुंचाने की, समाज को एक बेहतर इंडिया बनाने की। तो ये आप लोग की सोच को मैं सल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए, ये नेशनल मीडिया काउंसिल बहुत तरक्की हासिल करे, और बस दुआ के साथ मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अल्लाह। और जो सच दिखा रहे हैं, ऐसे जो जर्नलिस्ट हैं, उनका प्रोटेक्शन हो सके। जी सर, एक छोटा सा सवाल जी। कल की मीडिया, कल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज की ये जो सोशल डिजिटल मीडिया जी, इसमें क्या फ़र्क है सर? क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप कल की मीडिया को आप कह रहे हैं, तो जिस कल के बारे में आप कह रहे हैं, यानी जो कल आज से हम लोगों ने यानी 5-10 साल पहले देखा था इंडिया में, उस वक्त तक तो मीडिया का मामला बिल्कुल न्यूट्रल था और सच दिखाया जाता था चैनलों से। मगर अब जो है, कई सालों से जो ये गोदी मीडिया का जो एक ट्रेंड चला है,
मैंने बचपन में एक प्रोवर्ब पढ़ा था इंग्लिश में कि इफ़ यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, बट इफ़ यू डू रीड द न्यूज़पेपर यू आर मिस इन्फॉर्म्ड। तो वो अब मैं प्रैक्टिकली होता हुआ देख रहा हूँ अपने देश में, यानी जो सच है, जो सच्ची खबरें हैं वो दिखाई नहीं जाती, और कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले ही हम मुलजिम को मुजरिम ठहरा देते हैं, और सारे फ़ैसले जो हैं मीडिया में ही कर लिए जाते हैं। हम ही तय कर लेते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो ऐसे वक्त में एक ऐसे एसोसिएशन, ऐसे काउंसिल की बुनियाद पड़ना ज़रूरी थी कि जो सच्चे मीडिया वालों को और सच्चे पत्रकारों को लेकर एक एसोसिएशन बने, ताकि उनके लाइफ के ऊपर भी जो थ्रेट है उनके प्रोटेक्शन का इंतज़ाम हो, और साथ में पब्लिक को, आवाम को सच्ची न्यूज़ और सच्ची खबरें दिखाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, Mr. Shah Alam. Up next, I would call upon a very, very dynamic personality again, Mr. Muhammad Rafiq Siddiqui. Please, sir, come up on stage. I've known him for years, and sir is... आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। ये जो प्लेटफॉर्म है निश्चित तौर पर हमारा जो प्रोफेशन है उससे जुड़ा हुआ है, और मुझे बहुत खुशी है कि नेशनल मीडिया काउंसिल आज इनॉग्रेशन है और उसका मैं हिस्सा बना हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितनी भी मीडिया है, सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर एक लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो जिस फील्ड से आते हैं उस फील्ड की बात करते हैं। मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ था, कई पॉलिटिशियन आए, वो पॉलिटिक्स की बात करके चले गए। जाहिर तौर पर हर किसी की तलाश होती है कि मौका मिले कि मौका लगाओ, है ना। किसी ने गोदी मीडिया नाम दे दिया, किसी ने कुछ और नाम दे दिया, किसी ने और कुछ नाम दे दिया। मेरा मीडिया की फील्ड में मैं 2 मिनट आप लोगों का तवज्जो दूँ, सिर्फ 2 मिनट। बोलने की आदत तो दिन भर बोलता ही रहता हूँ, लोग देखते भी रहते हैं, कभी कभी बोलने से भी बोर हो जाते हैं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे। लेकिन 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट मंच है, और 2 मिनट आप सबका मैं जानना चाहूँगा। मैं इस फील्ड में 14 साल से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, 14 साल से। 10 साल से तो ताकत ही नहीं। मैंने उस दौर में पत्रकारिता शुरू की थी जब ये सोशल मीडिया था ही। एंड्रॉइड फोन भी बहुत सारे गिने चुने लोगों के मोबाइल फोन था, बल्कि बहुत लोगों के पास था भी, इवन हम लोगों के पास भी। मैंने उस दौर की पत्रकारिता को भी देखा है, बल्कि किया है, मैं गवाह हूँ, और आज की पत्रकारिता को भी कर रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हम मीडिया वाले, मैं मीडिया की बात करूँगा, जब हम मीडिया वाले आपस में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई गोदी मीडिया है, जब कोई वो कहता है कि तुम चाटुकार मीडिया हो, जब कोई कहता है कि आप इसको मक्खन लगा रहे हो, कोई कहता है कि देखो तुम इसके पीछे वसूली करने के लिए लगे हो, तरह तरह की बातें होती है, तो मुझे अफसोस होता है। मेंटालिटी निश्चित तौर पर देखिए चैलेंज है। हम लोगों ने सुना था, पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इमरजेंसी के दौर को जब मीडिया के ऊपर एक बैन लगा दिया गया था, उस दौर में भी मीडिया ने लड़ाई लड़ी। और मुझे याद है कि उस दौर में भी प्रिंट मीडिया ने अपनी बातों को पहुंचाने के लिए प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल किया था। जब प्रेस लिखी हुई गाड़ी को पुलिस वाले पकड़ लेते थे। लड़ाई उस वक्त भी लड़ी गई थी। लड़ाई उस वक्त भी लड़ी गई जब मीडिया को टारगेट करके उनके हाउस के अंदर सीबीआई, ईडी रेड किया गया, जब उनको टारगेट किया गया, उनको ब्लैक किया गया, तब भी लड़ाई लड़ी गई, और आज भी लड़ाई लड़ी जा रही है। हम मीडिया वालों को, क्योंकि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हम इन लोगों के साथ बैठते भी हैं, हम मीडिया वालों का तवज्जो चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो आपस में क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। सबसे पहले क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए आपस में। ये तय कर लीजिए कि मीडिया का मतलब ही माध्यम है, और माध्यम किसका? माध्यम सरकार और जनता का माध्यम है। सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बातों से सरकार को अवगत कराना, यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी मीडिया दिया गया, माध्यम दिया गया। अगर इससे बाहर हम कुछ जाते हैं, अगर ये